الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين منبر پاک پر تشریف فرما باوقار علماء اسلام شعراء ذوی الاحتشام ائمہ محدثین سامنے بیٹھے معزز مکرم سامعین پردے سے سماعت کرنے والی عزت مآب خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بے حد مبارکباد کے لائق ہیں تمام ممبران اراکین جلسہ سجانے والے وہ تمام معاونین بالخصوص آپ کی مسجد کے خطیب و امام قاری محمد اقرار رضا صاحب قبلہ، ساتھ ہی ساتھ مولانا ساجد رضا صاحب قبلہ اور آپ تمام زندہ دل وجود مسلمان جنہوں نے محنتیں کوششیں سازشیں کی بزم غوث اعظم سجانے میں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس بزم محبت کو مقبولیت کے درجوں سے مالا مال فرمائے۔ منبر پاک پر آپ حضرات عظیم معتبر محتشم چہرے دیکھ رہے ہیں، جہاں میرے دائیں جانب شاعر ملک ہندوستان طوطی چمنستانی رضا بلبل باغ رسالت برادر صغیر بھائی محمد یونس رضا مراد آبادی تشریف فرما ہے، تو میری بائیں جانب نقیب اہل سنت نقیب اجلاس حضرت علامہ مولانا اختر رضا صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، مولانا ساجد رضا صاحب قبلہ، مولانا جاوید رضا صاحب قبلہ، تمام ارباب منبر ان تمام کی موجودگی میں تھوڑی دیر کوشش کروں گا انشاءاللہ گفتگو کرنے کی۔ اللہ کی پاک عظیم معتبر بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ میرے بولنے کو آپ کے سننے کو اور ان تمام باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے پناہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ ماحول بنائیے، آپ کا سسٹم میرے سمجھ میں آ نہیں رہا ہے کہ آپ کیسا سن رہے ہیں، یہ افراتفری ہاں اور یہ انتشار کہاں ہے جلسے کا ماحول۔ آپ بیٹھیے سکون کے ساتھ، آپ نے دعوت دی ہے علماء کو بلایا ہے، تو صرف چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں ان کو سننے کے لیے بلایا ہے، تو آپ سنیں، کافی کرسیاں خالی ہیں، آپ یہاں بیٹھیں سکون کے ساتھ۔ جو پیغام آپ حضرات کے پاس منبر سے جائے اس پیغام کو آپ سنیں انشاءاللہ، تبھی آپ کے جلسے کا رزلٹ آئے گا۔ آپ نے بڑی محنتیں کی ہیں، آسان نہیں ہوتا بھائی جلسہ کرانا اس دور پرفتن میں، بہت سخت کام ہے، بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، کوششیں کرنی پڑتی ہیں، گھر گھر جانا پڑتا ہے، لوگوں کو منانا پڑتا ہے، دعوت دینی پڑتی ہے، تب جا کر کے ایک جلسہ وجود میں آتا ہے۔ اور آپ حضرات یوں ہی افراتفری میں اسے نکال دیں گے تو اچھا سا نہیں لگے گا۔ حالانکہ جو میرا کام ہے میں اپنا کام کر دوں گا، اس پر کوئی مجھے گلہ نہیں ہے آپ سے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ حضرات ماشاءاللہ سے اگر بیٹھ کر دل جمی کے ساتھ
एक पुरसुकून माहौल बना करके आप सुनेंगे इंशाअल्लाह, तो मुझे यकीन है कि हर बात समझ में भी आएगी, इसलिए कि समझने के लिए सुकून का होना जरूरी है। और जब आपके समझ में नहीं आएगी तो आप अमल ही उस पर क्या करेंगे। तो इसलिए पहले माहौल बनाइए, फिर उसको बागौर बाज़ोर हर बात को सुनिए और फिर इंशाअल्लाह सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करिए। आपका जलसा भाई आपको कामयाब बनाना है। हम तो यहाँ कल के जलसे में जाकर के आपके माहौल बताएंगे, तो ऐसा सुनिए आप जो हम कल के जलसे में आपकी तारीफ करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह मेरे लिए पहला प्रोग्राम है आपकी इस बस्ती में। हालांकि अतराफ में ये उलमाए किराम जानते हैं मेरी गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन मैं आपके फील्ड में आपके दयार में पहली मर्तबा हूँ, तो मुझे लगना चाहिए कि वाकई आप सुनना जानते हैं माशाल्लाह। तो आप इस अंदाज के साथ बैठिए, इस अंदाज के साथ सुनिए, ताकि मैं नहीं बल्कि आने वाले खतीब, आने वाले शायर, आने वाले जो मुकद्दिरीन हमारे हैं, ये नकीब साहब जो आपसे रूबरू हों, तो वो आसानी अपनी बात आप तक पहुंचा सकें। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मुझे आपको हक बोलने की, हक सुनने की, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जरा मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात देखिए मैं आपसे ये बता दूं, ये बहुत पुरफितर दौर चल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए सारा मामला आपके सामने ओपन है कि इस वक्त हो क्या रहा है, इस कौम को कितना टारगेट किया जा रहा है, कितना निशाना बनाया जा रहा है, मगर उसमें कुछ कमियां हमारी भी है। बात मैं आपको बता दूं, हम कभी कभी जोश में अपना होश खो देते हैं, हम जोश में अपना होश खो देते हैं। सिर्फ नारा लगाने का नाम ही इसके रसूल नहीं है, ये सुन ले आप, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, सिर्फ नारा ही लगाने का नाम इसके रसूल नहीं है। अगर नारा ही लगाने से इसके रसूल कंप्लीट हो जाता तो फिर ये पैगाम जो कुरान और हदीस के आप तक उलमाए किराम पहुंचाते हैं, इस पैगाम का क्या होगा। हमें मुस्तफा का आशिक बनने के लिए, मुस्तफा का गुलाम बनने के लिए, अब्दुल कादिर जिलानी का आशिक बनने के लिए, बड़े पीर साहब का गुलाम बनने के लिए बहुत से काम इस दुनिया में करने पड़ेंगे जिनका उन्होंने सबक दिया है, जिनका उन्होंने दर्द दिया है, जो नबी की जिंदगी से मिलते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब की जिंदगी से मिलते हैं। ये काम अगर हम अपनी जिंदगी में करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ हम यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह की कसम, जो मुस्तफा और अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब का सच्चा गुलाम बन जाता है, खुदा की कसम वो ज़माने का ईमान बन जाता है। इसलिए आज रुस्वा जलील और खार हम क्यों हैं, सिर्फ हमारी ज़बानों पर नारे नारे हैं, बाकी अगर हम अंदर से देखें तो हमारे अंदर वो चीज नजर नहीं आती जिसका पैगाम 1440 साल पहले मेरे आका ने तुम तक पहुंचाया था, जो पैगाम हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब ने तुम्हें पहुंचाया था। वो पैगाम मानिए इंशाअल्लाह, वो पैगाम मानकर सच्चा पट्टा गुलामी का गले में डालकर आप अगर हर तला की कमीज से निकलेंगे तो कौन मुस्कुरा करके कहेगी इस जाने वाले को देखो ये दुनियादार नहीं, मुस्तफा का सच्चा वफादार। सच्चे आशिक़े गौसे आज़म बनिए। सिर्फ 11वीं शरीफ से काम बनने वाला नहीं है, यह सच कह रहा हूं उलमा की मौजूद है। हमने सिर्फ 11वीं को ही इसके गौसे आज़म समझ लिया। मनाइए शान के साथ, मैं कब मना करता हूँ ज़ौक़ के साथ मनाइए, मगर इस चीज का ख्याल रखिए कि इससे ज्यादा भी अहम कोई चीज है, इससे ज्यादा भी अहम कोई सबक है, इससे ज्यादा भी अब्दुल कादिर जिलानी मुस्तफा के बेटे ने हमें कोई जामे सबक दिया है, और वो सबक ये है, ये जो सामने अल्लाह का घर नजर आ रहा है, जिसे मस्जिद के नाम से याद किया जाता है, इसके मीनारों से जो 5 वक्त तुम्हारे पास बुलावे आते हैं, कभी हय्या अला सलाह, कभी हय्या अला फलाह, कभी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वो चाहिए बारगाह खुदा में सर झुकाइए। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ जब आप सच्चे नमाज़ी बन जाएंगे तो मुस्तफा की गुलाम
जिलानी की भी गुलामी का हक अदा है। सुभान अल्लाह। हम कहाँ हैं और पैगाम कहाँ है? जिस अब्दुल कादिर जिलानी की मजलिस में हम बैठे हैं, मालूम है आपको 40 साल इशा के वुदू से मुझे हुक्म दिया गया है कि आप इस्लाह पर तकरीर करें। मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि बयान भी सुना दूं और आपकी इस्लाह भी करूं। इस्लाह बहुत जरूरी है। सिर्फ जलसों में हाथ उठाकर नारा लगाना ही हमारे लिए काफी नहीं होगा। वो अल्लाह का करम है कि खुदा अपने करम से बख्श दे, मगर हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा मेरे भाई। हमें अहकामे शरीयत मानना पड़ेगा, पैगामे मुस्तफा पे अमल करना पड़ेगा, पैगामे कुरान मानना पड़ेगा, तब जाकर के हम दुनिया और आखिरत में कामयाब। सारी जिंदगी अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब की तारीख सुने। आप अकल वाले लोग हैं, सिटी से बिलोंग करते हैं, इधर उधर मत जाइए, माहौल को पुरसुकून रखिए। सारी जिंदगी अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब ने बेनमाजी का नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ाई, और अगर पढ़ाई हो तो कोई दलील नहीं। पूरी जिंदगी बड़े पीर साहब ने बेनमाजी का जनाज़ा। क्या होगा इन नारों से जब हम नमाजी नहीं बनेंगे? क्या होगा जब अल्लाह की ना हो के मुसाफिर नहीं बनेंगे? फिर कहते हैं हमें समाना, हमें रुस्वा करने में लगा हुआ है। अरे दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता तो ये समाना न जमाने ने दिखाया होता। कामयाबी तो तेरे कदमों के बोझे लेती सर अगर तूने नमाजों में झुक। कब बदलेंगे हम अपने आप को? कब सुधरेंगे हम? कोई और बताने वाला नहीं है। मिंबरों का मकसद यही है, तकारीर का मकसद यही है, जलसों का पैगाम यही है कि आप सच्चे और नेक अल्लाह के बंदे बन जाओ, नमाजी मुत्तकी परहेजगार बन जाओ, मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाओ, अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब के सच्चे गुलाम बन जाओ। फिर मैं दावे से कहता हूँ कि अगर तू गौसे आज़म का गुलाम बन जाएगा तो फिर गुलाम तो उनका होगा मगर जमाने का इमाम। मगर गुलामी के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ हमने 11वीं शरीफ बना ली तो गुलामी का हक अदा हो गया। वो काम अच्छा है आप करें, मगर आप उस पैगाम पे नजर डालें जो पैगाम जोरे हयात में अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब की जिंदगी है। और यही वजह है, ये मैं बता दूं, जो आज भी कायनात के अंदर उनके कुछ मानने वाले जिंदा हैं कि जिस वजह से कयामत नहीं आ रही है। वरना हम अगर अपनी जिंदगी में उतर के देखें ना बाबू, तो वो हर गुनाह हमारे अंदर मौजूद है कि जिस गुनाह की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने कौमों को इस्तेमाल कर दिया, मिटा। कल के जमाने में अगर बेटी को जिंदा जमीन में दबा दिया जाता था तो क्या आज उसका मिशन आज हॉस्पिटल के अंदर क्या आज कौन सा ऐसा गुनाह है? मगर शुक्र करो अल्लाह पाक का, शुक्र करो आमिना के लाल का, शुक्र करो महबूबे परवरदिगार का। जब आसमान पे बदली का टुकड़ा नजर आता था तो आमिना के लाल बाहर आकर के आसमान की तरफ देखते थे, आंख में आंसू होता था, अल्लाह से दुआ करते मेरे मालिक मैं डरता हूँ इसी आसमान से पानी बरसा है। तो मैं नूह पर नूह मार दी, तो मैं नूह को डुबा करके मार दिया गया, कहीं तो मैं समूद पर खून बरसा, आंधी तूफान के बबूले आए, कहीं जो है खून बरसाया गया, कहीं पत्थर बरसाया गया। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत गुनहगार होगी, मगर हर आदाब से महफूज रखना, ये दुआ मुस्तफा का सिला है। अगर उनकी रहमत ना हो दुनिया में अभी आग लग जाए तो मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, उसका तर्जुमा सुने। अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, ईमान वालों से अल्लाह फरमाता मुझसे डरो सच्चों के साथ। कितना अच्छा पैगाम है, बताओ। दुनिया में भी भलाई और आखिरत में भी बोल। सच्चों के साथ रहने वाला दुनिया के अंदर सच्चा कहलाता है।
कोई शराबी अगर सच्चों के साथ घूमने लगे, नेकोकार के साथ घूमने लगे, नमाजियों के साथ घूमने लगे, ठेकेदारों के साथ घूमने लगे, तो लोग कहेंगे बदल गई जिंदगी, नेक हो गया है। इसलिए कि नेकोकार लोगों के साथ, कोई नेक आदमी अगर गुंडों के साथ रहने लगे, शराबियों के साथ रहने लगे, जानियों के साथ रहने लगे, जुआरियों के साथ रहने लगे, तो लोग कहेंगे यार इसकी सोहबत बिगड़ गई है, ये बिगड़ गया है, शराबी हो गया है, जुआरी हो गया है, ये तो दुनिया की कहानी है। मगर सुन मेरे आमना फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते हैं, महबूबे परवरदिगार फरमाते हैं कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसका हश्र उसी। क्या चाहते हो आप? क्या हम हमान के साथ खड़े हो जाए, शद्दाद के साथ खड़े हो जाए, फिरौन के साथ खड़े हो जाए, नमरूद के साथ खड़े हो जाए? इसलिए कि झूठे हैं, मक्कार हैं, कत्तार हैं, या अय्याश हैं, अय्यार हैं। सच्चे बनो, अच्छे बनो, नेक बनो, ताकि हमारा हश्र अबू बकर सिद्दीक के साथ हो जाए, उस्मान गनी के साथ हो जाए, फारूक आज़म के साथ हो जाए, मौला अली के साथ हो जाए, अब्दुल कादिर जिलानी के साथ हो जाए, हमारा हश्र महबूब सिमला के साथ हो जाए, शादी मियां के साथ हो जाए, ख्वाजा पाक के साथ हो जाए, महबूब इलाही के साथ हो जाए, हमारा हश्र इमाम अहले सुन्नत के साथ हो। इन सच्चों का दामन क़यामत में मिल जाए तो इंशाअल्लाह हमारे भी बारे न्यारे हो जाए और इंशाअल्लाह क़यामत में हम भी जन्नत के हकदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मगर याद रखो नबी का जलसा सुनने वालों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बगैर मेहनत करे कोई किसान जंगल से खेती काट के ले आया हो, नहीं, उसने मेहनत की है तब जाकर फसल हाथ आती है। ऐसा नहीं है कि बगैर मेहनत के किसी ने नीट की परीक्षा को पास कर दिया हो, नहीं, पहले मेहनत की है तब जाकर के डॉक्टर बना है। ऐसा नहीं है कि बगैर मेहनत के किसी के सर पे दस्तार हिफ्ज़ बन गई हो, नहीं, पहले मदरसे में मेहनत की है इन हुफ़ाज़ ने तब जाकर के दस्तार हिफ्ज़ नसीब हुई है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हम यहाँ उलमाए किराम के बयान को सुन के अमल करके मेहनत करेंगे, अल्लाह की बंदगी करेंगे, अल्लाह कल क़यामत के दिन हमें इसका इनाम मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये दादा खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरा मालिक बुलाता है मोहब्बत से तुम्हें भाई, बड़ा नादा है ये इंसान, बड़ा बिस्तर पे सोता है। जन्नत तुझे लिहाफों में नहीं मिलेगी, गद्दों में नहीं मिलेगी, महलों में नहीं मिलेगी, तकियों में नहीं मिलेगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तू जन्नत का मुतलाशी है कि तुझे जन्नत मिल जाए, तुझे इज्जत मिल जाए, तुझे शौहरत मिल जाए, तुझे मनसब मिल जाए, तुझे मकाम मिल जाए, तुझे अवार्ड मिल जाए, तुझे डिग्री मिल जाए, तो चल घर से निकल अल्लाह के दरबार में आकर के झुक जा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जब मेरा बंदा मेरी बारगाह में आता है और अपने सर को झुकाता है, सर बाद में उठता है, नेक जायज मुरादों को पहले पूरा फरमा दिया जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो बेइंतहा प्यार करने वाला अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। इसके महकाए में आ गया। अल्लाह फरमाता मेरी बारगाह में आ, तभी तो लिखा है मोहब्बत के साथ कहते सुभान अल्लाह, दिल से कहते या रसूल अल्लाह के मुझे भी मुन होते अशिकों से बूथे चले आओ, अरे आओ रहमान मेरो चले आओ, के कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका,
محبوب کی تحلیل سے ہو کے چلے آؤ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. بچوں کی کہانی سن کسے کہتے ہیں سچا؟ عبد القادر کو بعد میں سننا ہے، پہلے ان کی ماں کو دے، ان کے باپ کو دے. جی جب ماں باپ کی ہسٹری سمجھ میں آ جائے گی، میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، میرے بزرگ جوان بھائی بیٹھے ہیں، نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، اپنے آپ کو سوال اور سن. جب ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو خدا کی قسم ان کی اولاد بھی اچھی ہوتی ہے. جی جی جی، بہت خوب. ایک سچے کی کہانی تاریخ میں جس کا نام شیخ ابو صالح جنگی دوست، کس کے والد کا نام لے دیا میں نے، بتائیں گے آپ؟ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب کے والد کا نام شیخ ابو صالح جنگی دوست. پیر میں جانکاری پیدا کرو، یہ والد ہیں بڑے پیر، جی مگر کتنے تقوی دار، کتنے پرہیزگار. 3 دن کے بھوکے ہیں، ایک ٹائم کی نماز قضا نہیں، 3 دن کا بھوکا ہے، ایک سجدہ بھی قضا نہیں. ہم 3 ٹائم گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں. اللہ کبھی ناشتہ کھلاتا ہے، اللہ کبھی کھانا کھلاتا ہے، اللہ سکون سے تجھے سلاتا ہے، اللہ میٹھا شیریں پانی پلاتا ہے، اللہ ٹھنڈی تیرے لیے ہوا چلاتا ہے. تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے پھر بھی شریعت کو پامال کرتا ہے، اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے پھر بھی سر جھکانے کے لیے تیار نہیں. یہ کتنا سچا جوان ہے. اللہ اللہ 3 دن کا بھوکا ہے، نہ گیلا ہے نہ شکوا ہے، سجدوں پہ سجدے ہیں، قیام پہ قیام ہے، مصلی بھی نہیں ہے، سر پہ پنکھا بھی نہیں ہے، قالین بھی نہیں ہے، کجلا کا ریت ہے، ندی کا ریت ہے. اللہ اکبر کبیرہ، دریا کے ریت کو مصلی بنا کر کے اللہ کا ولی اللہ کی عبادت فرما رہا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. آج ہم تو قالینوں پہ پڑھنے تیار جی جی جی، پنکھے چل رہے ہیں، ایسیاں چل رہی ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، کبھی گرم پانی ہے، ہر چیز دستیاب ہے. جی ان سے پوچھو جنہوں نے تلواروں کے سائے میں سجدے کیے، جی، نعرہ ہی لگا دیتے ہیں کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بتائے حسین نے کیسا سجدہ کیا؟ جانتے ہیں آپ، سنتے ہیں میرے بھائی. قالین نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، اے سی کی ٹھنڈ نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، تپتی ریت پر اللہ والے سجدے کرتے تھے. یہ ان کے سجدوں کی وجہ ہے جو آج ہم دنیا میں ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر اللہ اللہ جب 3 دن ہو گئے تو جس دریا کے کنارے عبادت چل رہی تھی، ایک بھی جملہ ادھر ادھر نہ جائے، 200 تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. 3 دن ہو گئے، اسی دریا میں ایک سیب بہتا ہوا نظر آ گیا. جب سیب نظر آیا آپ نے سوچا یہ عبارت سیب ہے، چلو چل کر کے اسے کھا لیں. ایک قدم پانی کے اندر رکھا، بڑے پیر صاحب کے والد نے سیب اٹھایا، بڑا معروف واقعہ ہے مگر میں نصیحت کے لیے سنا رہا ہوں. آپ کو بیان سنانا مقصد نہیں، صرف اصلاح کرنا مقصد ہے. جب کھایا تو ایک منہ مارا، 2 منہ مارے، 3 منہ مارے، ابھی پورا سیب نہیں کھایا کہ آگا سیب کھایا. دبے نے دامن پکڑ لیا. اے ابو صالح، جو مال تم کھا رہے ہو تمہیں کچھ پتا نہیں کس کا ہے، تم نہیں جانتے کہاں سے آیا ہے، تمہیں کچھ جانکاری نہیں. اگر کل قیامت کے دن اللہ نے اس سیب کے تعلق سے سوال کر دیا، بتائے تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ جی جی، اس لیے آپ وہیں رک گئے اور دل میں خیال آیا. جب تقوی نے دامن پکڑا تو دل میں یہ خیال آیا، ارے یہ غلط کام ہو گیا، چلو ایسا کرے جدھر سے یہ آ رہا ہے اس کے مالک سے جا کر کے معاف کرا لیں، ان سے کہہ دیں تاکہ دنیا کا معاملہ دنیا میں نبٹ جائے. انجام آخرت ہے، انجام تک کہانی نہ جائے، ورنہ بڑی شدید مار ہے اللہ کی. یہی تو خیال آیا تھا عبد القادر جیلانی کے والد کے دل میں کہ آدھا سیب ہاتھ میں لے کر کے اس طرف چل دیے جدھر سے پانی آ رہا تھا. 1-2 میل نہیں، 3-4 میل نہیں، تاریخ بتاتی ہے 16 میل چلے تھے تب جا کے عبداللہ سومئی کو بھاگ آیا. کس لیے چلے؟ تاکہ یہ آدھا کھایا ہے اسے معاف کرا لو، تاکہ اللہ کی پکڑ سے قیامت میں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ. اور ہم بھی ہیں ایک مسلمان، ہمارے سامنے سے ذرا نکل دو.
नहीं बता रहे, ऐसे लिपट गया जैसे इसके बाप की गाड़ी है। और वो पहले दौर था जो गन्नों से काम बन जाता था। अब नीचे वाला कह लिया चल काफी हो गए, 2-3 बस आ जा, वो कह रहा चक्कर में मत पड़, गन्ने से काम नहीं बनेगा, पूरी खेचन दे पूरी। नारा लगा रहे हैं वो, इसका दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर मेरे भाई नारा बाद में लगाना है, अमल करके पहले दिखा दुनियादार को बता, ताकि तुझे मुंह से नहीं कहना पड़े कि ये अब्दुल कादिर जिलानी का गुलाम है। तेरे अंदाज को देख के तो दे मुस्कुरा कर कि ये बड़े पीर साहब का गुलाम। सुभान अल्लाह। इसे तकवा कहते हैं। ऐसे ही थोड़ी होते हैं नेक बच्चे घरों में पैदा, इसे तकवा कहते हैं। अंदर बाग में एंट्री मारी, 16 मील चलकर हजरत अब्दुल्ला सोमई जो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब के सगे नाना होते हैं, चादर तान करके आराम फरमा रहे थे। इसने ये नहीं सोचा जवान ने मैं 16 मील चल के आया हूँ, चलो चादर हिला दी जाए, आवाज लगा दी जाए, बेदार कर दिया जाए। नहीं, हिसाब लगाया तू कौन होता है, अल्लाह के बंदे के आराम में खलल डालने वाला। खड़े हो गए पैर की तरह, इस इरादे से जब चादर हटेगी, आंख खुलेगी तो अपना मुकदमा पेश कर दिया जाएगा। बंदा सोता रहा, अल्लाह का वली खड़ा रहा। जब चादर चेहरे से हटी तब सलाम अर्ज किया, जवाब सलाम मिला। कहा कौन? कहा नाम मेरा शेख अबू साले जल्दी दोस्त है। क्यों आए हो बेटा? तो आधा सेब दिखा करके बड़े पीर साहब के अब्बा ने कहा था हुजूर आया इसलिए हूँ, आपके बाप का सेब बकरिया दरिया बहुत दूर निकल गया, बगैर इजाजत मैंने खा लिया, आपसे माफ कराने आया हूँ, आप माफ कर दें ताकि दुनिया का मामला दुनिया में निबट जाए, मुझे आखिरत में कहीं इसका जवाब देना ना पड़े। अल्लाहू अकबर, आंखों में आंसू थे। ये कह रहा था जवान, तो बाग के मालिक ने सोचा कि इससे ज्यादा नेक लड़का मुझे नहीं मिल सकता। कहा भाई जब तुमने सेब खाया है तो अब सजा भी भुगतनी पड़ेगी। जी। कहने लगे हुजूर मैं तैयार हूँ, जो सजा देना चाहे वो सजा दे दे, इसलिए कि आपका माल खा लिया है और बगैर इजाजत खा लिया है। सुनो गुलाम बाग वालों, हर तरह की धरती पर बैठकर नबी का जलसा सुनने वालों, जरा गौर से सुनो। उन्होंने कहा हमारे बाग की गोटी करो, बाग की रखवाली करो। आधा सेब क्या होता है यार, बाग रखाने पर लग गए। 1 साल रखाया, 2 साल गोटी की, साल तीसरा हुआ, जब साल चौथा हो गया, रखवाली करते करते तो उस मालिक के मेहमान बाग में आए और आपने इरशाद फरमाया ए जवान ये मेरे खास मेहमान हैं, बड़े दिनों के बाद आए हैं, ऐसा करो इन्हें अच्छे सेब खिलाओ, खूबसूरत सेब खिलाओ। दस्तरखान लगा दिया गया, सेब चुन चुन कर अच्छे अच्छे रख दिए गए। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब मेहमानों से कहा खाओ, तो जब मेहमानों ने खाए तो कोई फीका सेब था, कोई खट्टा सेब था, कोई पैसा सेब था। मेहमानों ने कहा हुजूर इनमें मीठा तो कोई नहीं है, आप फीके क्यों खिला रहे हैं? तो अब्दुल्ला सोमई कहने लगे ए मेरे बेटे, मैंने कहा था मेहमान खास है तो सेब भी अच्छे अच्छे खिलाओ, मगर इनमें मीठा कोई नहीं है। तकरीर का जुमला तो अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद ने कहा था बाग के मालिक सुन ले, 4 साल से बाग रखाया जरूर है, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैंने 4 साल में कोई सेब खा के नहीं देखा कि मीठा कौन सा होता है और फीका कौन। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना अशफाकुल कादरी साहब बिल्ला। तास्मेदारी है, ये परहेजगारी है यार। जब बाप अच्छा होता है, बड़ी पैदा होते हैं, जब माँ अच्छी होती है तो अल्लाह वाले पैदा होते हैं। इसलिए कि माँ बाप टारगेट होते हैं, माँ बाप और आपके लिए एक बहुत बड़ा नमूना होते हैं, आइडियल होते हैं, मॉडल होते हैं, दर्श होते हैं। आप भी अगर चाहते हो कि हमारी आने वाली नस्लें दीनदार बन जाएं तो पहले तुम दीनदार बनो। जब तुम दीनदार बन जाओगे तो तुम्हारी नस्ल भी मुस्तफा की वफादार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत जिम्मेदारी थी आपके वालिद। अल्लाह तो आपने कहा बेटा 4 साल का पीरियड हो गया, अभी कोई सेब ही नहीं खाया। का हुजूर बिल्कुल नहीं खाया। का खाया क्यों नहीं? तुमसे किसी ने मना नहीं किया, आप खा लेते। सुने गौर से। तो आपने कहा हजरत कैसे खा लेता? आधा खाया था तो अब तक अभी आधे का केस फाइनल नहीं है।
तो दूसरा कैसे खा लेता? मुझे तो डर है कि ये आज ही कल तक लिख देगा। 4 साल हो गए, अभी तो फाइनल फैसला आया नहीं है। है इतना सुना तो अपने सीने से लगा लिया। अल्लाह वाले थे ना, वली की मुलाकात वली से हो रही है, रोशन ज़मीर है, अल्लाह के वली है। सीने से लगा के कहा बेटा चलो पाक की रखवाली खत्म। तो आप सोचे कि चलो हो गया माफ, मगर कहा कि अब एक काम और करना। कौन सा काम करना है? कि मेरी एक बेटी है और उस बेटी के साथ आपको। तो आपने कहा हुजूर जब आया था तो 18 साल का था, 4 साल आपके यहाँ हो गए, 22 साल उम्र, मुझे क्यों इतराज हो सकता है? और फिर दूसरी बात, मैं आपका गुनहगार हूँ, मैं सेब खाए बैठा हूँ, तो मैं तैयार हूँ। आपने फरमाया बेटा तैयार तो हो गए, मगर आप जानते हैं कि मेरी बेटी कैसी है? तो आपने कहा हुजूर मुझे क्या मालूम, आपके घर में पली, आपके घर में बड़ी, आप जानते हैं, आपने खिलाया, आपने पिलाया, आप जानते हैं बेटी आपकी कैसी है। मैंने देखी नहीं, बाली नहीं, मैं क्या जानूं? तो आपने कहा सुन बेटे, मेरी बेटी आंखों से अंधी। आपने कहा कबूल है। क्या कहा? बाप कह रहा है अंधी, तो जवान कह रहा है कबूल। आपने कहा लंगड़ी, जवान ने कहा कबूल। आपने कहा लंजी, जवान ने कहा कबूल। आपने कहा गुप्ती, जवान ने कहा कबूल। आपने कहा बैरी, जवान ने कहा कबूल। जरा तकरीर के जुमले को दिल में उतार लो मेरे भाई, और इस माशरे में उतर करके देखो कि आज बड़ी बड़ी अच्छी लड़कियों को फेल किया जा रहा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अपने बेटे पे नजर नहीं डाली जा रही है, दूसरी की बेटी को चलाकर देखा जा रहा है, चाल ढाल देखा जा रहा है, रंग ढंग देखा जा रहा है। मगर ये कितना सच्चा जवाब था। अंधी थी तो कबूल कर ली, लंगड़ी भी कबूल कर ली, लुंगी भी कबूल कर ली, टुंकी भी कबूल कर ली। अल्लाह अल्लाह। किसी ने पूछा हजरात ये तमाम कमियां बता दी गई, आपने फिर भी कबूल कर ली। तो इरशाद फरमाया इससे भी ज्यादा कमी होती तो मैं कबूल कर लेता, इसलिए कि ये दुनिया है यहाँ तो कट जाएगी। तुम्हें क्या मालूम कल जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ज़बाने के पर सूरज होगा, औलाद का आसमान होगा, तांबे की तबीर बना दी जाएगी, भेजे झोलते होंगे, पसीने बहते होंगे, लोग रोते होंगे, भयानक माहौल होगा, पुरसाने हाल कोई न होगा, बचाने वाले कोई न होगा। 50,000 बरस का दिन होगा, 25,000 इंतजार में गुजर जाएंगे, तब अल्लाह की अदालत लगेगी। सब चाहेंगे मेरा फैसला हो जाए, हर सोचेगा मेरा फैसला हो जाए, फिर आवाज आएगी चलो फैसले के लिए अब अल्लाह की अदालत लग गई। तो बताओ उस अदालत में मैं कैसे हिसाब दे सकता हूँ? इसलिए मैंने कबूल कर ली ताकि दुनिया में निपटारा हो जाए, क़यामत के लिए कोई बाकी ना बचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान गौसे आज़म, नारे तकबीर। ये सबक मुस्तफा के घराने से मिलता है, ये सबक मुस्तफा के घर से मिलता है, ये दर्द नबी की बेली से मिलता है। अभी तो मेरे इनाम बोले उनकी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है तेरे नूर, तेरा नाम घराना नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भरते प्याला नूर का, नूर हिंदू ना तेरा तेजाल सदका नूर। सदका मुख्तसर सुने अम्मू में वो जल्दी तकरीर खत्म करूंगा, इसलिए अपने खतीब सानी को आप सुनेंगे। अल्लाह अल्लाह। अब निकाह पढ़ा दिया गया, हजरत अब्दुल्ला सोमई ने अपनी बेटी का निकाह पढ़ाया और दामाद बना लिया गया और कहा जा बेटा मेरी बेटी तेरा इंतजार कर रही है, पूरा कमरे में मेरी बेटी बैठी है, अब जरा इधर उधर दिमाग ना करें, गौर से तकरीर सुने, मैं मोहब्बत मेहनत कर रहा हूँ आपके सामने। अल्लाह अल्लाह। अब ये चले शादी की पहली रात है, बीबी से पहली मुलाकात है, हम भी जाते हैं अपनी बीबी से मिलने। कितने लोगों की शादियां हो गई, वो भी अपनी बीबी से मुलाकात करते हैं, मगर आपको मालूम है मेरी बीबी देख भी सकती है, खड़ी भी हो सकती है, बोल भी सकती है, सुन भी सकती है, मगर ये कायनात के अंदर एक ऐसा अकेला जवान है जो अपनी बीबी से पहली मुलाकात करने के लिए चला है। तो इसके दिल में ख्याल रहकर आ रहा है कि जिस बीबी से मुलाकात करने जा रहा हूँ वो देख नहीं सकती, वो आंखों से अंधी है, वो बोल नहीं सकती, वो जबान से गूंगी है, वो सुन नहीं सकती, वो कानों से बैरी है, वो खड़ी नहीं हो सकती, वो टांगों से लकड़ी है, वो हाथ नहीं चला सकती, वो हाथों से लकड़ी है, मगर फिर भी जा रहा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अपनी बीवी से मिलने के
उम्मुल खैर था, कलीद फातिमा थी, कलीद राबिया थी, सायरा का कल्चर उसके अंदर था, आसिया का कैरेक्टर उसके अंदर था, हाजरा का किरदार उसके अंदर था, बड़ी खूबियों की मालिक थी, बड़ी तकबेदार परहेजगार, वो नेक बेटी थी। अल्लाहू अकबर। और जो नेक होते हैं उनका तर्ज जिंदगी ये होता है कि जब शौहर उनका आता है तो शौहर से पहले ही वो अदब से अपने शौहर को सलाम कर लेती है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। हालांकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उलमाए किराम बैठे, हदीस से मुस्तफा है कि जब तुम घर जाया करो तो अपनी बीवियों को सलाम किया करो। वाह माँ को कर लो तो बहुत आला काम, बाप को कर लो तो आला काम, बेटे को भी कर लो, इजाजत है, बेटी को भी कर लो। अल्लाहू अकबर कबीरा। और अगर बीबी हो तो बीबी को भी। कुछ लोग बड़े घूर रहे हैं कि मौलाना तकरीर करने बुलाया या ना करवाने बुलाया। नहीं, नाक नहीं कटेगी भाई, सवाब मिलेगा। और ये भी बता दूं, जिम्मेदारी से कितना मिलेगा, 100 शहीदों का सवाब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये आका की हदीस है, बीवी हो तो सलाम कर लो। अगर एक बात रोक के एक बात अगली कह दूं, फिर आका करीम फरमाते हैं कि घर में तो हो तो फिर भी खाली घर को सलाम कर लो। सहाबी ने दामन पकड़ के पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारी जानें आप पे कुर्बान हो जाए, खाली घर में सलाम कर ले, जवाब कौन देगा? हम मचल जाओगे दिल को सुनने वाले। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में जवाब देने के लिए कोई नहीं होता तो मुझ मोहम्मद की रूह का सलाम का जवाब दे दे। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये लिखा है, ज़माना देख ले शीशे के घर में रहते, वाह वाह, ज़माना देख ले शीशे के घर में रहते हैं, और मेरे हुजूर मेरी चश्मे तल में रहते हैं। मकाम उनका ना फर्शे कभी ना अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं जहाँ मानने वाले होते हैं, मेरे आका दिलों में भी रहते हैं, मेरे आका घरों में भी रहते हैं। दरूद पाक पढ़े जरा दिल से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मौलाना मुहम्मद मोहम्मद की बात। अला सय्यिदिना सलातुम व सलाम अलैका या रसूल। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि मैं क्या अर्ज कर रहा था, अब ये सारे ख्यालात ज़हन में हैं, और अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद मोहतरम जा रहे हैं बीबी से मुलाकात करने। अब एंट्री मारी उसी कमरे के अंदर जहां ये कनीज़े फातिमा उम्मुल खैर बैठी थी। बड़ा की खूबसूरत थी, तकबेदार थी, परहेजगार थी। क्यों ना होती कि अल्लाह को मंजूर ही था कि इस माँ की कोख से मैं अपने अब्दुल कादिर को दुनिया में। कोई मामूली डिसाइड नहीं किया होगा, मामूली इंतखाब नहीं किया होगा। बाप भी आला चुना, माँ भी आला चुनी। जब कदम रखा शेख अबू साले जंगी दोस्त ने, तो ये एक बीवी थी, खड़ी हो गई, अदब से सलाम किया, अपने शौहर को सलाम किया। जब इन्होंने सलाम का आवाज सुना तो जवाब देकर पीछे को पलट गए, और इतनी तेज पलटे घबरा गए कि आपका माथा चौखट में लगा, खून निकला। और घबराते अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में आकर के बोले, कहने लगे, हुजूर तुमने गलती से मुझे गलत रास्ता बता दिया है, मुझे वही रास्ता बताओ जिस कमरे में आपकी बेटी बैठी है। इसलिए मैं डरता हूँ, एक गलती कर बैठा हूँ, अब तक केस फाइनल नहीं है, नहीं चाहता कोई दूसरी गलती हो जाए। हजरत आपने जो कमियां बताई थी वो उस बेटी के अंदर नहीं है, उसकी आवाज भी ठीक है, उसने सलाम किया है, उसकी टांगे भी ठीक है, वो अदब के लिए खड़ी हुई है, उसकी जबान भी ठीक, उसने सलाम किया, उसकी आंखें भी ठीक। आपने फरमाया लूली है, लंगड़ी है। इतना सुना तो अपने सीने से दमाद को लगा करके प्यार किया और इरशाद फरमाया, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। प्यारे बेटे, कायनात के अंदर तलाश करता तो तुझे ऐसी बीवी न मिलती जैसी मेरी बेटी है। कहाँ मतलब क्या, कहाँ मतलब ये लंगड़ी इसलिए बता दिया कि आज तक घर से कदम नहीं निकाला, पैर इसलिए बता दिया आज तक कोई गुनाह कानों से नहीं सुना, तक गुंगी इसलिए बता दिया आज तक जबान पर झूठ नहीं आया, और का इसलिए अंधी बता दिया कि आज तक किसी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत नारे तकबीर। जिसका बाप तारीफ के कसीदे पढ़ रहा है और खूबियां बयान कर रहा है, अनकी ऐसी है, पैरी ऐसी है, टुंगी ऐसी है, लुंगी ऐसी है, वो बाप है जो आटा सेब खा करके अब तक दुनियादारी के मसाइल में उलझा है। अब मुझे कहने दिया जाए मुरादाबाद वालों, जब माँ ऐसी होती है, बाप ऐसा होता है, तो इनके घर में अब्दुल कादिर जिलानी पैदा नहीं होंगे। अब इस जोड़े से अल्लाह एक बच्चा पैदा करता है मुल्क ईरान के अंदर, शहर जीरान के अंदर, महीना भी रमजान का, सबके महीना भी रमजान का। अब एक बच्चा पैदा हुआ, नाम जिसका अब्दुल कादिर लिखा गया। अल्लाह अल्लाह, अब वो बच्चा कितना सुहाना है, वो बच्चा कितना निराला है। अल्लाह अल्लाह, अब जरा थोड़ी सी तारीफ सुना के तकरीर खत्म करूं। अल्लाहू अकबर। हर माँ की ख्वाहिश होती है, मेरी बहनें बेटियां माएँ बैठी हैं, जब ये बच्चे को जन्म देती है तो ये इतनी खुश होती है कि अपनी तकलीफ भूल जाती है कि मेरा बच्चा जिंदा पैदा हो गया। हर माँ चाहती है कि मैं अपने लाल को अपनी छाती का दूध पिला दूं। हर माँ की ख्वाहिश है, हर बहन बेटी चाहती है। तो अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा ने भी चाहा कि मैं अपने लाल को जब छाती से लगाया, सुने गौर से, तो आपने चेहरा फेर लिया, अपनी अम्मी का दूध नहीं पिया। आज जब माँ का दूध औलाद नहीं पिए तो माँ तो घबरा जाएगी, माँ तो डर जाएगी, पता नहीं बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है। अब वो घबरा गई, तो किसी मर्द में तो नहीं है। एक अल्लाह वाले थे, अपना आंचल में छुपाया अब्दुल कादिर जिलानी अपने बेटे को, और उनके पास लेकर के गई और जाकर के कहा, हुजूर देखना मेरे बेटा दूध नहीं पीता है। उन्होंने नजरे विलायत से देखा, इसलिए कि अल्लाह वाले सब देखते हैं। हम देखे आसमान दिखे, हम देखे जमीन दिखे, अल्लाह वाला देखे तो कुछ सारा देखे। अर्शे कमतर नजर है वो कम देखते, जो कमतर नजर है वो कम देखते हैं, और वज़न वाले लोग कलम देखते हैं। हमें क्या दिखाए ये नजर, भला क्यों खुदा वाले हरदम हरम दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजरे विलायत महसूस कर लिया अल्लाह का नेक बंदा है। आपने फरमाया बेटी परेशानी की जरूरत नहीं है। कब हुजूर क्यों नहीं है? देखो तो ये कोई बीमारी में तो नहीं है। तो आपने फरमाया बीमारी में नहीं है, ये तो बीमारों का इलाज, ये तो मसीहा बन करके आया है। तो कहा फिर हुजूर दूध क्यों नहीं पी रहा? तो आपने फरमाया तुझे मालूम होना चाहिए ये माहे रमजान है, और रमजान में रोजा रखा जाता है, खाया पिया नहीं जाता। तो तेरा बच्चा रोजा रख रहा है, जब वक्त शाम होगा, वक्त मगरिब होगा, अजान मगरिब की सदा बुलंद होगी, तो तेरा बेटा दूध पी लेगा। अल्लाह अल्लाह, अपनी छाती से लगा करके घर आ गई। जब मगरिब का वक्त आया, अजान हुई, जब सीने से लगाया तो बड़े पीर साहब ने अम्मी का दूध पी लिया। तभी शेर आया, रहे पाबंद अहकामे शरीयत इब्तिदाई से, रहे पाबंद अहकामे शरीयत इब्तिदाई से, न छूटा शीर ख्वारी मैं भी रोजा गौसे आदम का। और इलैया या मुबारक आती थी आबाद खिलबत में, के रुतबा सारे बलियों से आला गौसे आदम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कितना आला बनों में, कितना आला, कितना आला। कहते कदम यहाँ आला रकबत कुल्ली वलील्लाह, ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। सुभान अल्लाह। अच्छी बाप, अच्छा। तो एक दिन का बेटा रोजा रख रहा है, यार नाना नाना है, नवासा नवासा है। अभी आपने गुज़िश्ता महीने मिलाद के जलसे सुने, तो आपने अक्सर विलादत मुस्तफ़ा को सुनते हुए ये सुना होगा
کہ جب آقا کریم مکے کی دھرتی پہ دنیا میں تشریف لائے نا تو میرے آقا نے پیدا ہو کر کے ہی سر کو سجدے میں سبحان اللہ سنا ہوگا آپ نے سر کو سجدے میں رکھ دیا. مطلب نانا سبق دے رہا ہے کس چیز کا؟ نماز. تب نواسا بھی کیوں پیچھے رہے؟ جب نانا نے پیدا ہو گئی نماز پڑھ لی تو نواسے نے پیدا ہو گئی. سبحان اللہ. نانا نماز پڑھتا ہوا آیا اور نواسا روزہ رکھتا ہوا آیا اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں وہ ایک دن کا بچہ ہے اگر روزہ رکھ رہا ہے. آج 18 سال کا جوان روزہ رکھنے تیار نہیں. جی اب 18 سال کا جوان روزہ کیوں رکھے گا جب 60 سال کا اس کا ابا کھا غلط تھوڑی ہے. سامنے باپ کھا رہا تو اولاد کیوں رکھے گی؟ کہ تم ماں تک بیدار تھی باپ تک بیدار تھا تو اولاد بھی ایسی پیدا ہوئی. خدا کی قسم کہ روزہ رکھتی ہوئی دنیا میں آئی اور پھر تمام دنیا کو بتا دیا عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب کی مقام ان کے والد کی شان ان کی ماں کی شان خود اللہ والوں کی شان کتنی اعلیٰ ہے. اللہ اکبر. پھر یہی بچہ کتنے مقامات کا حامل ہوا. فرماتے قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ. یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. کس قدم پر بنی گردن اولیاء اس قدم کی علامت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر کبیرہ. یہی آج وہ مشہور حالت ہے کہ آپ کی بستی میں نہیں پورا ماہ ربیع الثانی ملک ہندوستان میں نہیں ساری دنیا میں عبد القادر جیلانی کے قصیدے پڑھے جائیں گے. میرے امام اہل سنت بولے واخا مرتبہ اے ہو والا تیرا اونچے اونچے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا سر بھلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں تو ہے. واہ سبحان اللہ. آپ کا شکر گزار ہوں مشکور ہوں. بہت اچھا آپ نے سن لیا. اب آپ کو ایک خطیب کو سننا ہے مجھ سے بات اور قبل خطیب شاعر صاحب کو سننا ہے. بہت اچھا بہت عمدہ. آپ سے گزارش یہی ہے بھائی جو میں نے سنایا آپ نے سنا اللہ پہلے مجھے بعد میں آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے سنا نہیں روزے کا پیغام ملا تقوی کا پیغام ملا پرہیزگاری کا پیغام ملا. اسی واقعے سے ہمیں کتنے درس ملے ہیں. ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کو اپنے سینے میں اتاریں. نمازی بھی بنے تقوی دار بھی بنے پرہیزگار بھی بنے روزہ دار بھی بنے نیک بنے. عبد القادر جیلانی کا عقیدہ سن لے بس میں ختم کر رہا ہوں. عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے پیر صاحب اور اپنے مریدوں سے کہہ رہے ہیں میرے مریدوں بتاؤ تم نے موت کو کتنا قریب جانا ہے. تو آج ہم نے 10 سال کی پلاننگ 20 سال کی پلاننگ کر رکھی ہے اور اپنی زندگی میں کیسے کیسے معاملات جیسے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے مگر عقیدہ تو دیکھیں عبد القادر جیلانی کا مریدوں کی جماعت ہے اللہ والے بیٹھے اور حضرت عبد القادر جیلانی ارشاد فرما رہے میرے مریدوں بتاؤ تم نے موت کو کتنا قریب جانا ہے. ایک مرید کھڑے ہو کے بولا حضور اتنا قریب جانا ہے فجر پڑھ لیا پتہ نہیں ظہر پڑھنے ملے نہ ملے. دوسرا کھڑا ہوا کہا حضور اتنا قریب جانا ہے ظہر پڑھ لیا پتہ نہیں عصر ملے نہ ملے. تیسرا بولا عصر پڑھ لیا پتہ نہیں مغرب ملے نہ ملے. سب مریدوں کی سن کے بڑے پیر صاحب ارشاد فرماتے ہیں میرے مرید ہو کر اتنی لمبی آسیں لگائے بیٹھے ہو سنو پیروں کا پیر کیا کہتا ہے. آپ کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے ایک طرف سلام پھیر لیا پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے ملے. یہ ہے ان کی زندگی. ہم 11ویں میں مگن ہیں مناؤ 11ویں اور اس سے پہلے نمازی بنو اس سے پہلے تقوی دار بنو اس سے پہلے پرہیزگار بنو. نعرہ بعد میں لگاؤ دامن پہلے تھام لو باتیں بعد میں کرو دلیل پہلے پیش کرو. واقعی لگے تم غوث اعظم والے ہو واقعی لگے تم مصطفیٰ والے ہو واقعی لگے تم اللہ والے ہو. اس انداز سے آپ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اللہ کی پاک محتشم معتبر بارگاہ میں دعا گو ہوں رب کبھی قریب پروردگار خالق کائنات خالق کائنات اگر میں اس کا گنہگار بندہ ہوں دوران تقریر جان بھول کر مجھ سے خطایات نقصانات اغلاط ہوئے ہوں اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے. ذرا محبت سے کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.